آئیے آپ کو براہ راست کر لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. میں نے سینیٹرز، ایم این ایز، ممبران صوبائی اسمبلی اور حیدرآباد سندھ کے میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. ابھی ہم اسی منصوبے کا ایک افتتاح سکر میں کر کے آئے ہیں اور اب دوسرا افتتاح آج اس وقت حیدرآباد میں ہوا چاہتا ہے. اور میں آپ کو سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ عظیم منصوبہ جو کہ جس طرح بھی آپ کو یہاں پر بھی اور سکر میں بھی بتایا گیا کہ بانی موٹر ویز میاں محمد نواز شریف یہ انہی کی قومی بصیرت تھی، سوچ تھی، جس نے آج پشاور سے لے کے سکر تک پورے پاکستان کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے. اور آج انہی کے اس ویژن کو ہم آج آگے بڑھا رہے ہیں میاں نواز شریف کے. اور سکر حیدرآباد کا یہ منصوبہ سیگمنٹ جو کہ 306 کلومیٹر ہے اور 307 ارب روپے کی اس کے اوپر خطیر رقم خرچ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 30 مہینے میں یہ منصوبہ تکمیل ہوگا آپ کی دعاؤں سے. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، جناب مراد علی شاہ صاحب حساب کے بڑے پکے ہیں، قانون دان بھی ہیں اور میتھمیٹکس بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو کہیں یہ خسارے والی جگہ پر پاؤں نہیں رکھتے. بالکل بہت ذی شعور ہیں، اپنے کام کو بہت سمجھتے ہیں. تو انہوں نے آج یہاں پر آ کے سکر میں جو انہوں نے فرمایا یہاں پر حیدرآباد میں اس میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں ان کی. تو شاہ صاحب کو پتہ ہے کہ حکومت پاکستان کے خزانے پہ کتنا بوجھ ہے، وہ جانتے ہیں اچھی طرح. اور یقیناً انہوں نے اپنے عوام کی، صوبے کی جو باتیں ہیں، مطالبات انہوں نے پیش کرنے ہیں، یہ ان کا حق ہے، ان کو کرنا بھی چاہیے. اسی طرح میرے بھائی امین الحق صاحب نے بھی اپنے مطالبات پیش کیے. اور ایک تو بڑا جائز مطالبہ ہے اور مشترکہ مطالبہ ہے اور بالکل اس کی منطق سمجھ میں آتی ہے کہ کراچی سے حیدرآباد کا جو موٹر وے ہے وہ بالکل چوک ہو چکا ہے اور یعنی الٹی گنگا بہتی ہے، ٹریفک الٹی ڈائریکشن سے آتی ہے، حادثات کا آئے دن وہاں پر سامنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ میاں نواز شریف، جس طرح میں نے کہا کہ یہ موٹر وے کی بنیاد انہوں نے رکھی 90 کی دہائی میں اور یہ سلسلہ پر جاری رہا. ان کا یہ ویژن اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ اس میں کراچی حیدرآباد کو شامل نہ کیا جائے. اس کے لیے میں جو منسٹر پلاننگ ہیں چودھری احسن اقبال صاحب، پروفیسر چودھری احسن اقبال صاحب، ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ فی الفور اس کی فیزیبلٹی شروع کریں. اور جناب مولانا اسد صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ اس کو
जंगी बुनियादों पर इसको आप टेकअप करें और इसी मॉडल में ये इंशाअल्लाह मैं आपको मुझे यकीन वासिक है कि आप इसी मॉडल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये मंसूबा इंशाअल्लाह बहुत बरक रफ्तारी से लग सकता है और दुनिया की मायनाज कंपनियां इसमें आके सरमायाकारी करेंगी। तो आप अल्लाह का नाम लें। और चीफ मिनिस्टर साहब, आप बड़े एक विजनरी चीफ मिनिस्टर हैं। इसकी जो ज़मीन का जो बैठ के आप सारा डिस्कस करेंगे, तो ये मंसूबा इसकी अगर शुरुआत, इसकी फिजिबिलिटी, इसकी डॉक्यूमेंटेशन फिल फॉर शुरू हो जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं आपको ये इनकरेज करूंगा कि इसके ऊपर फिल फॉर काम किया जाए। वहां पर सक्कर में मौलाना राशिद सुमरो साहब ने भी मुतालबात पेश किए थे और यहाँ पर हैदराबाद में जनाब अमीनुल हक साहब ने मुतालबात पेश किए हैं। अब 50 करोड़ रुपए का जो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो यहाँ पर डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया था और जिसके ऊपर बवजह अमल ना हो सका, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मुतालबा है जो आपका जायज़ भी है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा और जनाब चीफ मिनिस्टर सिंध की खिदमत में कि 1 अरब मैं देता हूँ और 1 अरब आप दे दें, तो जनाब 2 अरब का ये यहाँ पे हम बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी जनरोसिटी का, बहुत मेहरबानी। तो ये 2 अरब का पैकेज हम हैदराबाद सिंध के अपने भाइयों और बहनों की खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। और अगली बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वज़ीर आला साहब ने एक लंबी लिस्ट यहाँ पर जो मंसूबे जो माजी में जिनके ऊपर बात हुई या उसके ऊपर कागजी कार्रवाई हुई या कुछ शुरुआत हुई, उसमें वो तातुल का शिकार हो गए। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप एहसन इकबाल साहब कि आप बैठें और हज़रत आप भी बैठें इनके साथ और बैठ के ये डिस्कस करें कि भाई ये कौन से मंसूबे हैं जो कि ये तातुल का शिकार हुए और उसमें हम क्या फिल फॉर उसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो इसको आप मेहरबानी करके आप बैठ जाएं और बैठ के ये मामला तय करें। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, जो आखिरी बात, जो 2 बातें इस महफिल के हवाले से मैंने करनी है वो ये हैं कि सैलाब ने जो तबाही की है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा तबाही सूबा सिंध में हुई, उसके बाद बलूचिस्तान में, उसके बाद केपी के पहाड़ी इलाकों में और नौशहरा में भी, और जनूबी पंजाब के 2 अजला में सैलाब ने तबाही की और करोड़ों लोग जो हैं वो इससे मुतासर हुए। बगैर किसी तफसील में जाए हुकूमत पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर शबाना रोज़ अवाम की खिदमत करने की एक बहुत खलूस से कोशिश की और साथ जो मुतल्लिका इदारे थे, NDMA, PDMA, अफवाज पाकिस्तान, दिन रात काम हुआ। तफसील आपको अच्छी तरह इल्म है और तकरीबन मैं अगर ये कहूँ कि सब कुछ तमाम मिलाकर जो वसाइल सूबों ने और वफाक ने खाली जो 28,000 रुपया 25,000 रुपया फी खानदान जो मुतासर हुआ, जो कि लाखों खानदान बनते हैं, 70 अरब रुपया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए तकसीम किया है और इंतहाई शफाफ तरीके से। इसी तरह NDMA ने कंबल, खैमे, पानी, खुराक, बच्चों की, इसी तरह सूबाई हुकूमत ने, सिंध की हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च किए और इनके PDMA ने, फिर बलूचिस्तान की हुकूमत ने
पंजाब की और केपी की हुकूमतों ने, हमने मिलकर, मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई ज़रा भी इसमें मुलम्माकारी या कोई ऐसी बात नहीं जिसको आदमी न कह सके कि 100 अरब रुपए से बढ़ के वफाक सूबों ने खर्च किया है। लेकिन लाखों लोग आज सर्दी में ठिठुर रहे हैं बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ों में और केपी के बर्फपोश पहाड़ों पे और सिंध के मैरान की वादियों में। उनको आज खैमे चाहिए, विंटर उनको चाहिए, ब्लैंकेट्स चाहिए, उनको अद्वियात चाहिए, उनको खुराक चाहिए। बाहर के ममालिक ने भी, हमारी दोस्त ममालिक ने मदद की है। एक बहुत बड़ा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फ्रांस ने दिया। शाह साहब अभी भी काम कर रहा है सिंध में, और बहुत बड़ा प्लांट वो, यानी उसको कई टन वजनी प्लांट है वो, जो कि सिंध में ये फ्रांस ने दिया था हमें। इसी तरह यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, कतर ने और दोस्त ममालिक के बरतानिया ने, अमेरिका ने, चाइना ने और दूसरे ममालिक ने बहुत मदद की। लेकिन ये इतनी बड़ी तबाही हुई थी कि जिसका अंदाज़ा लगाना कोई आसान काम नहीं। 30 अरब डॉलर के नुकसानात हुए हैं। अब 9 जनवरी को जनीवा में हमारी डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है और वहाँ पर हम अपना कशकोल नहीं लेके जाएंगे, अपना हक मांगने के लिए वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे जिस तरह हमने दूसरे फोरम पे उठाई है। और इस तरह पाकिस्तान के पास जो भी वसाइल हैं, हमें अपने इन भाइयों और बहनों और माओं के लिए हम वक्फ कर देंगे। बहुत मुश्किलात है, चैलेंजेस बहुत हैं। एक तरफ माशी तबाही जो पिछली हुकूमत ने की, महंगाई का बोझ है, IMF का कि कड़ी शराइत हैं, एक उन्होंने बाकायदा पाँव में जंजीरें पहना दी हैं। फिर आप देखते हैं कि हमें इस सैलाब के लिए हमें जो फंड चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हिम्मत हारने का सवाल नहीं पैदा होता उस मालिक जिसके कब्जे में हमारी जान है। इंशाअल्लाह उसकी मदद और नुसरत से हम मिलकर ये मखलूत हुकूमत हम काम कर रही है और इंशाअल्लाह अवाम के दुखों को हम मज़ीद कम करेंगे। और जब तक के अपने घरों में चैन से नहीं बैठ जाते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और आखिरी बात यह है कि मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस मामले में या तो आप ये देखें, और आपका हक है कि जहां पर हमारी गलती उसकी निशानदेही करें, हम माजरत भी करेंगे और बेहतरी का वादा भी करेंगे। लेकिन पूरी कोशिश अगर हो रही है और मुल्क के अंदर हैजानी कैफियत पैदा करने की एक शऊरी कोशिश हो रही है, मुल्क के अंदर अगर ये कहा जाए कि अपने कारोबारी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे, किसान बाहर क्यों नहीं आ रहे, आपने उस वक्त किसानों को बाहर क्यों नहीं बुलाया जब आप उनको खाद नहीं दे रहे थे और खाद पूरे पाकिस्तान में ब्लैक हो रही थी। आपने उस वक्त कारोबारी लोगों को बाहर क्यों नहीं बुलाया कि आए एहतजाज करें जब आप चीनी मुल्क से बाहर भिजवा रहे थे और एक्सपोर्टर्स की तिजोरियां भर रहे थे, रुपए का विंडफॉल भी उनकी जेब में जा रहा था, सब्सिडी भी आप साथ दे रहे थे। फिर अब दोबारा आपने चीनी दोबारा इंपोर्ट की और अरबों रुपए खर्च किए, गंदम एक्सपोर्ट की, फिर आपने इंपोर्ट की। आपने उस वक्त पूरी कौम को क्यों नहीं कहा कि एहतजाज के लिए आ जाओ बाहर, कि मैं इमरान खान गैस जो है $2 पर यूनिट पर मिल रही थी, मैं ना खरीद सका। खुदारा कुछ होश के नाखून लें आप। अगर आपको जरा भी इस कौम की हालत जार का अंदाजा है, जो कि आपको है मगर आपको परवाह कोई नहीं, आपका एक पत्थर दिल है, तो इस कौम को आप इसकी बहाली के लिए कोशिश करें। सैलाबों में तो आप जा नहीं सके, वहां पर तो आप पहुंच सके और आप कौम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कभी उम्मीद है कि जो ज़ी शऊर लोग हैं, ये कौम बहुत एक शऊर रखने वाली कौम है और ये कौम उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा और हम मिलकर इंशाअल्लाह इस कश्ती को हम मंझधार से निकाल कर किनारे पे लगाएंगे और कायद का पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। पाकिस्तान
पाकिस्तान कायद आजम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। सिंध की अवाम को सक्खर मोटरवे की बुनियाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का। मोटरवे मंसूबे मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का विजन है। सिंध की अवाम को सक्खर मोटरवे की बुनियाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।